Hi. Yes. I think periods are beautiful. Periods are natural. They define a woman, and if the periods, everything is normal. I think जो इतने सालों से टैबू रखा हुआ है पीरियड्स पे, वो जैसे आज भारती जी ने कहा कि नहीं होना चाहिए. I was really happy that somebody is really talking about it in open. And yes, छोटे छोटे गाँव में शहरों में कस्बों में अभी भी इस बात को बहुत ही वो माना जाता है. बहुत ही ऐसे माना जाता है कि लोग विस्पर्स में बात करते हैं. तो इन्होंने जैसे कहा कि यू शुड नॉट टॉक अबाउट इन विस्पर्स, ये नॉर्मल चीज़ है और नॉर्मल बात कीजिए. मुझे बहुत अच्छा लगा. और अगर इसी तरीके के अवेयरनेस कैंपेन्स होते रहेंगे तो किसी लड़की को झिझकना नहीं पड़ेगा. स्पेशली वो लड़कियां जिनके घर में मदर्स नहीं होती हैं या बड़े बड़े नहीं हो बड़ी औरतें नहीं होती हैं. दे शुड नॉट फील शाई एंड दे शुड कम आउट. मुझे याद है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड I was just entered my teen. My mother was not at home. She had gone for a holiday somewhere. और मुझे periods हो गए थे. I just went to my dad and I said, I want money. He said, what? For what? I said, I want to buy sanitary pads. And I thought it was really cool. मुझे बिल्कुल नहीं लगा awkward. I don't know what my dad felt. और मैं एक छोटे से शहर में रहती थी. तो I'm still that girl and I think every woman should come out of that closet and talk about it. और जो भारती जी कर रही हैं दूसरी लड़कियों के लिए, नॉट ओनली स्प्रेडिंग अवेयरनेस, फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कर रही हैं. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल कॉज. Come on, everyone, it's time to applaud. I can't hear anything. Put What? your hands together. Today, As if not, no. I just want to rest for a while. I'm celebrating the अभी तो मेरा रेस्टोरेंट अभी ओपन हो रहा है 10 days में. तो आई एम वेरी वेरी बिजी विद दैट. आफ्टर दैट आई पिक अप अ शो. या ऑलराइट, वेलकम. Did I meet you yesterday? We met yesterday and we are meeting for two very different causes for sure, yes. Uh, yes. So this is quite an awareness because like I said even on the podium that we get so busy with our lives and we get so busy with so many things that we don't realize that all these things even exist and people like um, Miss Bharti Lavekar even exist. I mean to say we definitely know that of their existence, but we definitely do not know about what they do for the society, what they do for women, what they do, to help us grow and get aware of certain things. And I think what she's doing is fabulous. Like I said on the podium, I'm known for breaking norms. I mean to say, I've been known for it for the longest time possible. I've been known to be a voice where not many people they think twice about all of this. But as far as talking about periods or menstruation cycle, I think it's a taboo that is that should have been broken long back. And I mean to say, and which world are you guys living in? I mean to say, if I didn't have my periods, I wouldn't have had my two sons, and my two sons are not going to have the next generation if their wives don't have periods. So I mean to say, without our periods, the world wouldn't exist primarily. So I mean to say, we should be thanked and we should be really cherished, and we should be not just because we have periods, but because we have the ability to give life. And having periods is a primary part of it. It's so natural. And we've been, the society has been too taboo about talking about it. And, like, बहुत सारे लोगों ने कहा, but I'm okay with all of that. I'm okay with whatever's happened in the past because I'm not a person to think about the past. I've always been the person to think about the future and to see the future. So for me, I think we should see the future, and I think we should start instilling this awareness in everybody's minds in front of them, and say that, boss, hum hai to aap hain, and that goes for periods as well. Although we are missing Urvashi Rautela from the last so many movies, when is the new upcoming? You just said Rotella. Yes, It's fine, I understand. so when we are going to see your upcoming new movies? I don't know. I really don't know. When you tell me. Thank you.
किती सेकंदात पाहिजे किती सेकंदात पाहिजे झालं सब ओके है क्या चलो सर आजच्या कार्यक्रमाबाबत काय सांगा आज वर्ल्ड हायजेनिक डे असल्यामुळे डॉक्टर भारती लवेकर ज्या वर्सोवेच्या आमदार आहेत यांनी गेल्या 5 वर्षापूर्वी ही महिलांच्या करता जी सॅनिटरी पॅड वापरतोय त्याची बँक तयार करण्याचं काम आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या सोबत सुरू केलेले होते. आज त्याला 5 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि वर्ल्ड हायजेनिक डेच्या निमित्तानं हा कार्यक्रम आज त्यांनी केलेला आहे. या 5 वर्षामध्ये त्यांनी महिलांचे आरोग्य आणि सॅनिटरी पॅडच्या किंवा महिलांच्या ह्या विषयाच्या संदर्भात ज्या अंधश्रद्धा आहेत किंवा ज्या चुकीच्या प्रथा आहेत या कमी करण्याकरता, नष्ट करण्याकरता आणि त्यांना पॅड पुरवण्याकरता मग शाळा असेल, कॉलेज असेल, झोपडपट्टी असेल, पाडे असतील, तांडे असतील, गाव असेल या सगळ्या ठिकाणी घेऊन जाण्याचं त्यांनी काम केलेलं आहे. त्याचा आज वर्धापन दिन बँकेचा होता आणि हे काम त्यांनी एवढं चांगल्या पद्धतीने केल्यामुळं त्यांना राष्ट्रपतीनं सुद्धा पुरस्कृत केलेलं आहे. आता त्यांचं पूर्ण जगातून सुद्धा अनेक देशातून त्यांना त्या संदर्भामध्ये मागणी येते आहे आणि या निमित्तानं पूर्णपणे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागापर्यंत जाऊन पूर्ण भारतात आणि इतर देशामध्ये सुद्धा त्यांचं काम करण्याचा निश्चय आहे आणि म्हणून त्याला शुभेच्छा देण्याकरता आज माझ्यासह वेगवेगळ्या क्षेत्रातले सिने क्षेत्र असेल, उद्योग क्षेत्र असेल, मेडिकल क्षेत्र असेल अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातले मान्यवर सर्व आज या ठिकाणी आले होते. त्या ठिकाणी वेगवेगळे कार्यक्रमसुद्धा महिलांचे केलेले आहेत. माझ्या त्यांना मनापूर्वक शुभेच्छा. थोडा राजकारणाचा विषय होता. छत्रपती संभाजी महाराजांची थोडी कोंडी होते महाविकास आघाडीतर्फे, काय भाष्य करायला पाहिजे? नाही असं आहे, छत्रपती संभाजी महाराज यांनी सुरुवातीलाच त्यांनी राज्यसभेची निवडणूक स्वतंत्रपणे मी लढवणार असं जाहीर केलं आणि आज त्यांनी काल ते आम्ही निवडणूक लढवणार नाही हे सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलं. प्रश्न आहे की मधल्या दरम्यान त्यांनी जे अनेकांशी बोलायला हवं होतं ते चर्चा आणि त्यांच्याशी बोलले नाही असे त्यांचे वडील छत्रपती शाहू महाराज यांनीच आज स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतंय की त्यांचे अगोदर ज्यांच्याबरोबर काही बोलणं झालं असेल ते पूर्णत्वास गेलेलं नाही आणि त्यामुळं त्यांना राज्यसभेमधून माघार घ्यावा लागली. चित्र असं दिसलं की महाआघाडीच्या नेत्यांनी मग आदरणीय पवारसाहेब असतील किंवा माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे असतील या सगळ्यांनी त्यांना शब्द दिलेला होता, तो शब्द पाळला गेला नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळे त्यांना माघार घ्यावा लागली. परंतु त्यांनी समाजकारणाच्या बरोबर राजकारणामध्ये सुद्धा येण्याचा आता निर्धार केलेला आहे. मला वाटतं ते पुढे योग्य दिशा घेतील. आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहेत. सर, महाराष्ट्रात हनुमान चालीसा विषय संपत नाही आहे. आता राणा दाम्पत्याने पुन्हा एकदा हनुमान चालीसा पाठ केला. नाही असं आहे की हे हनुमान चालीसा राणा दाम्पत्याचाच विषय नाही तर आपल्या भारतातल्या प्रत्येकाचाच तो विषय असू शकतो आणि हनुमान चालीसा म्हणायला काही मला वाटतं कोणाची परवानगीची किंवा कोणाची याची त्याची गरज नाही आहे. आपण प्रत्येकानंच ती म्हटलीही पाहिजे. ज्यांची श्रद्धा आहे त्यांनी ती म्हणायला काहीच हरकत नाही आहे. हा काय कोणाचा एकट्याचा विषय असू शकत नाही किंवा दुसऱ्याचा विषय, सर्वाचाच विषय. त्याच्यामध्ये ते पुढाकार घेतात एवढंच. हिंदी हिंदी सैनिटरी पैड के जिस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम किया उसके बारे में महिलाओं के लिए जो हेल्थ के लिए और महिलाओं के जो एक एज के ऊपर जब लड़की आती है तो उसके लिए जो सैनिटरी पैड लगता है उसके बारे में काफ़ी एक गैरसमझ और है, काफ़ी उसके बारे में विविध कहा जाता है जो बच्चों के लिए और हर घर के लिए, तो वो दूर करने के लिए उनकी शंका जो है उनके उसके बारे में जो थोड़ा सा निगेटिव है, कुछ कर्मकांड का है, ये सब दूर करने के लिए और उनकी हेल्थ अच्छी रहने के लिए साफ़ सुथरे पैड उनके लिए होना चाहिए. इस वजह से कि ये सब ध्यान में रखते हुए
डॉक्टर भारती जी लेवेकर इन्होंने टी फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 5 साल पहले एक सैनिटरी पैड बैंक बनाने का निश्चय लिया और उस दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। आज 5 साल में उन्होंने लाखों करोड़ों महिलाओं के पास वो सैनिटरी पैड पहुंचाने का काम उन्होंने किया और लगातार वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार उनका काम बड़ा हो रहा है और उसके लिए उनको राष्ट्रपति जी ने भी उनको गौरवान्वित किया है। और आज 5 साल के बाद अगर पीछे देखते हैं तो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश और कई देशों में से भी उनको निमंत्रित किया जा रहा है कि ये पैड बैंक है उसका काम हमारे देशों में भी या हमारे राज्य में भी किया जाना चाहिए। और ये उनको काम जो है उसको बधाई देने के लिए, उनको गौरवान्वित करने के लिए सभी सिने क्षेत्र हो या मेडिकल क्षेत्र हो या पॉलिटिकल हो या कोई काफ़ी सारे विभाग से लोग यहाँ आए थे, उनको बधाई दी, उनको हौसला अफजाई की और मैं भी उसी वजह से उनको बधाई देने के लिए आया था। मेरी बहुत बहुत उनके बारे में शुभकामनाएं और वो अच्छी काम कर रही है महिलाओं के प्रति, उनके हेल्थ के लिए। थैंक यू। इसका साफ बताएं। बहुत बढ़िया। वाह, एक मिनट में लगाना दो सबको बेटा। चले भाई, एक मिनट सर। सर आज मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है, सो वाकई बहुत सारी इससे मैसेज मिलते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मैसेज तो बहुत ज़रूरी है और ये एक नेचुरल चीज़ है और पहले हम लोग छुपाते थे, बोलते नहीं थे, लेकिन आज इस चीज़ को आप हम बोल सकते हैं, ये अच्छी बात है। समाज में लोगों में एक बढ़िया मैसेज जाता है और ख़ास करके हमारे MLA डॉक्टर भारती लेवेकर जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे कॉज के लिए इतने अच्छे लोग आए, साथ में मुझे भी उन्होंने याद किया, बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और ऐसे काम में तो हाथ बटाना ही चाहिए और बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सबका और कि अच्छा लगा और अच्छी बातें हुई, एक मैसेज खूबसूरत सा लोगों में गया। सर आपकी तरफ से इस जो लोग आपकी आज जो पुराना जनरेशन था उसका अवेयरनेस नहीं था, लेकिन अवेयरनेस काफ़ी हो गया। एक मैसेज क्या आपकी तरफ से देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही कहूँगा कि पहले लोग छुप छुप के मतलब एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे, आज लोग शेयर करते हैं, खुलेआम एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये एक मैसेज बहुत ज़रूरी है और ये समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए ये मैसेज, ये कॉज बहुत ज़रूरी है, मैं यही कहूँगा। सर आपके अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स जो अभी हम देखेंगे? जी अभी सिंस more than 42 years I have been entertaining you all, संगीत से, अपनी गायकी से। और अभी सूर्यवंशी में टिप टिप बरसा पानी फिर से धमाल किया है, फिल्म भी सुपरहिट हुई और अभी आने वाली फिल्म जैसे गदर पार्ट 2 में आ रहा हूँ, कई फिल्में हैं। तो आपका उदित नारायण क़यामत से क़यामत तक से शुरू हुआ है और क़यामत से क़यामत तक चलता रहेगा, मतलब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। सर जो ऑडियंस आपको इतना प्यार देती है उनके लिए अगर आप कुछ गुनगुनाएं? टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो छा गया मुझ पे दीवानापन, मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं। हाय, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? आज आप आए हो, आज बहुत बड़ा दिन है एंड इसके थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी वुमेन्स को? देखिए, ये बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे इंडिया में
मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ 15% ही लेडीज़ हैं जो सैनिटरी पैड्स यूज़ करती हैं, जैसे कि मैंने कहा। और बाकी जितनी भी लेडीज़ हैं या तो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको पता ही नहीं है, तो वो पत्ते यूज़ करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनको बहुत इन्फेक्शन होती है। कई लोग मिट्टी तक यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में खुल के बात होनी चाहिए। ये तो एक नेचुरल चीज़ है हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए। फिर हम उसे इतना छुपाते क्यों हैं? जब कभी भी पीरियड्स आते हैं लड़की को तो बोलते हैं अछूत हो गई है, मंदिर नहीं जा सकती है, और ऐसे। तो हम आज भी कितने पिछड़े हुए हैं, मैं कभी कभी सोचती हूँ। लेकिन ये बहुत ही भारती जी एक अच्छा संदेश दे रही हैं कि खुलकर मंच पे इस बारे में बात हो रही है, ऐसी फिल्में बन रही हैं, ऐसी फिल्मों को अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही इश्यूज़, जैसे छोटे छोटे इश्यूज़ उठते हैं, जैसे पहले लोग स्वच्छता अभियान चालू हुआ तो हमारे दिमाग में बार बार आता है कि कोई भी चीज़ जब मैं बाहर, पहले हम लोग ऐसे ही फेंक देते थे, अब आता है नहीं, इसे डस्टबिन में ही डालना है। और जैसे जैसे हम लोगों को अवेयर करेंगे और इस बारे में बात करेंगे तो लोगों को लगेगा ये तो कॉमन बात है। इसके बारे में इतना छुपा के रखना, और लड़कियां इतना वो 5 दिन वो स्कूल में नहीं जाती। उनको लगता है कि जैसे अगर पैड्स ही नहीं है तो वो कपड़ा और दूसरी चीज़ों से वो कितनी देर तक उसको संभाल सकती हैं। तो 4-5 दिन स्कूल नहीं जाती, उनको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी स्टडी ख़राब होती है। सो इस इशू के बारे में मुझे लगता है हमें खुलकर बात करनी चाहिए। और ये हर औरत, हर लड़की का अधिकार है सैनिटरी पैड, और उसे मिलना चाहिए। मैम आने वाले दिनों में क्या हम आपके नए प्रोजेक्ट्स देखेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी एक हॉटस्टार के लिए मेरा एक वेब सीरीज़ आ रहा है मासूम, और उसमें मैंने एक बहुत ही अलग तरह का रोल किया है, तो लोगों को उपासना सिंह एक अलग रूप में दिखेगी। फिर मैंने मधुर भंडारकर जी की फ़िल्म की है अभी, बबली बाउंसर। और हम लोगों ने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है संतोष प्रोडक्शंस के नाम से, और मेरा बेटा हीरो आ रहा है अब। तो एक का नाम है बाईजी कुट्टनगे, जो 19 अगस्त को रिलीज़ हो रही है पंजाब में। काफ़ी बड़ी फिल्म है, समीप कांग है उसके डायरेक्टर, देव खरौड़ एक हीरो हैं, एक नानक है, और उसमें हरनाज कौर संधू जो अभी मिस यूनिवर्स बनी है वो नानक के साथ है, मेरे बच्चे के साथ। और फिल्म बहुत अच्छी और खूबसूरत फिल्म है। तो मैं अभी अपना प्रोडक्शन हाउस मैंने स्टार्ट किया है, अभी 2 पंजाबी फिल्में बनाई हैं, अभी इसके आगे हिंदी बनाऊंगी। मैम लास्टली आपके अंदाज में जिस तरीके से आप सभी को एंटरटेन करती है, सभी फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज तक आप लोगों ने जी 22-year-old हॉट सेक्सी और ग्लैमरस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी पसंद करते रहेंगे। और अगर नहीं करेंगे ना तो फिर बाईजी कुट्टनगे मेरी फिल्म का टाइटल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने जो इतना बड़ा काम किया है इसके विजन के बारे में बताइए, किस तरीके का आप ये काम करते हैं, कैसे लोगों को फायदा पहुंचता है विजन? विजन तो यही है कि जो हमारी महिलाएं हैं 50%, उन महिलाओं को मासिक जो पीरियड्स आते हैं उस पीरियड के दौरान उनको सैनिटरी पैड भी नहीं मिलते हैं। ऐसी नौबत है कि हमारे देश में 85% जो लेडीज़ है उनको आज भी सैनिटरी पैड यूज़ करने के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ 15% लेडीज़ को मिलता है। और इन लोगों के लिए कुछ काम करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं बहुत पहले से ही काम कर रही हूँ विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। लेकिन मैंने 5 साल पहले ये बैंक स्थापित की, टी फाउंडेशन सैनिटरी पैड बैंक। आज उसको 5 साल हो गए हैं, और आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी है, तो इसलिए हमने ये दोनों प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। और इसके बारे में खुलकर बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में कोई खुलकर बोलता नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ है। इसलिए मैं हमेशा जुड़ के काम करती हूँ महिलाओं के साथ में। आज 118 स्कूल्स हैं, उनको मैं रेगुलर पैड्स देती हूँ, हर लड़की को 10 पैड हर महीना। और हमारी जो NGO है, इसमें हमारे ये जो बैंक है, इसमें 1,09,360 महिलाएं जुड़ी हुई है, और हमारी वो मेंबर्स है। और हम लोग विटामिन की गोलियां से लेके हम बहुत सारी चीज़ें, अवेयरनेस है, यहाँ तक कि हम उनको आरोग्य सुविधा देने की भी कोशिश करते हैं। जो सर्विकल कैंसर है या बाकी भी कैंसर होती है जो महिलाओं को,
उसको भी कहीं ना कहीं हेल्प करके हम उसको यहाँ उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि होता नहीं है, इसलिए बहुत काम करना ज़रूरी है, हम करते हैं। और मेरी ये जो डिजिटल बैंक है, इसके लिए मुझे प्रेसिडेंट हमारे जो है देश के, उनके हाथों से फर्स्ट लेडी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस काम करते करते बहुत सारी महिलाओं के साथ मैं जुड़ गई हूँ और काम करना चाहती हूँ। ऐसे प्रोग्राम से हम प्रोत्साहित भी हो जाते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। मैडम प्राइसिंग को लेकर के आप यहाँ से सेंटर तक गई थी, अपना पूरा लेकर के महिलाओं को प्राइसिंग को लेकर के जो जीएसटी की बात आपने अपने स्पीच में की, वो पास ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बात? नहीं, जीएसटी तो कैंसिल कर दिया। हम लोगों ने बहुत सारी महिलाओं ने डिमांड की थी, हमने भी की थी कि जो हमें ऐसा लगा कि जीएसटी ख़त्म होने के बाद शायद सैनिटरी पैड की कीमतें कम हो जाएगी, लेकिन सैनिटरी पैड की कीमतें कम नहीं हुई, उल्टा कंपनियों को फ़ायदा हुआ। और ये कंपनियां सारी इंटरनेशनल लेवल की है, और हमारे यहाँ जो सैनिटरी पैड मिलते हैं उनकी कीमत कम नहीं हुई, मतलब उनको फ़ायदा हुआ, हमें नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, मैं मोदी जी का अभिनंदन करूंगी, हमारे नेता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सैनिटरी पैड और मासिक धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। हालांकि उन्होंने स्वातंत्र्य दिन के दिन सैनिटरी पैड और जो टॉयलेट्स होते हैं महिलाओं के लिए स्कूल में ज़रूरी है होने के लिए, ऐसा जिक्र उन्होंने किया। एक पुरुष पंतप्रधान और एक पुरुष जो सैनिटरी पैड के बारे में खुलकर बोलते हैं, ये हमारे लिए एज ए लेडी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और उन्होंने वो की। और फिर स्वच्छ भारत अभियान में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो ये है उसको उसमें समाविष्ट कर दिया। इससे मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो स्वच्छ भारत में समाविष्ट होने के कारण आगे अभी हमें उसकी हेल्प हो रही है। लेकिन WHO की जो गाइडलाइंस है उसमें हर लड़की को या हर स्त्री को स्वच्छ शौचालय मिलना, अलग शौचालय मिलना, पानी मिलना और सैनिटरी पैड मिलना, ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो अभी भी बहुत सारी जगह पे नहीं हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की आप उल्लेख कर रही है, लेकिन इसमें ये भी बात आती है कि हमारे देश में बहुत से MLA, लेकिन सभी ये टॉपिक नहीं यूज़ कर निकालते। नहीं, मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने सही में कुछ किया है उनके बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि ऐसे आज तक आपने कोई प्रधानमंत्री देखे हैं जो कि लाल किले पे जाके उन्होंने महिलाओं के बारे में, उनको स्वतंत्र स्वच्छता गृह मिले, उनको सैनिटरी पैड मिले, ऐसी बोला है? ऐसा किसी ने आज तक नहीं बोला है। पार्टी का सवाल नहीं है, पार्टी के आगे जाके महिलाओं के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी और बहुत सोचना होना चाहिए। मैम आपके द्वारा ही कहा गया था कि सैनिटरी पैड्स के जो रेटिंग्स हैं वो कम होंगे, बहुत से वादे पहले किए गए थे, लेकिन अभी तक भी वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या वाकई ये वादे पूरे होंगे? जितनी भी महिलाएं उनके लिए सोचा जाएगा? नहीं, वादा किसी ने नहीं किया था। यहाँ तक कि मोदी जी ने खुद 1 रुपए में जो जेनरिक मेडिकल स्टोर्स है वहाँ पे उन्होंने पैड अवेलेबल करवा दिए, तो वहाँ 5 करोड़ महिलाओं को उसका फ़ायदा भी हुआ है। हमारी डिमांड ये है कि रेशन का जो दुकान होता है उसमें सैनिटरी पैड मिले, क्योंकि ये लग्जरियस बात नहीं है, ये बोलते हैं ना मूलभूत उसकी नीड है, तो उसमें उसको देखना बहुत ज़रूरी है, जाकि अभी भी नहीं देखा जाता है।